गैस की फैक्ट्री है और वहाँ पे हमने शुरू किया ये सपना, जहाँ पे हमने ये कहा कि बच्चों को होलिस्टिक पूरा केयर मिलेगा, महिलाओं को एम्पावरमेंट। जो सीईओ सुन रहे हैं, हमारे 1 लाख, कम से कम 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस मुहिम से। You have known about the Vedanta businesses, all of you. You've known about what we do. But you may not have known about the social impact created and how each one of us has imbibed in our DNA, if I may say from Kiran ma'am and Anil sir, that it is life is only meaningful if it's about give back. We have lived it, and today, 6,000 Nandghars later, we know it's only a little faction and a fragment of what we have to do. It's a dream that we have to live for this country, for this nation. और एक और बात, हम एक्सपर्ट नहीं थे जब हमने शुरू किया, पर हम जहाँ गए भारतवर्ष में, इस वक्त हम 14 स्टेट में हैं, दरवाजे खुलते गए। कोई ऐसा जगह नहीं थी जहाँ किसी ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता है। मुश्किल हुआ होगा कहीं जगह, पर नामुमकिन नहीं। We are that team where we say today, Arambh hai Prachand, because we are going to do this for the country. Thank you, Chairman Sir. Thank you so much. We could not have done this without your vision. We have only lived your vision. You've given the entire Vedanta family something more so to be proud of, because we have inculcated this sense of give back. I will, now say thank you very much to Manojji. You've joined us in this movement. I know you are going to come here and tell your story and about it, but ever so grateful for you to be part of our family now. Thank you. And I will now invite author, director, actor, Tiska Chopra to come here and really take this evening forward for us. She may be most famous for Tare Zameen Par, but I would say she's going to be really most famous for the heart that she has and the give back that she wants to do and the fact that she wants to join this movement for this country with us. Thank you, Tiska. May I invite you to come and take stage for us. Thank you. Thank you for the very warm welcome, Ritu. And thank you all so much for joining us here today as we launch the Nandghar movement. Today marks a milestone in the journey towards a developed India, an India where every child has the ability to realize their dreams and aspirations. I think we all know that health and nutrition are the building blocks of any society. And with this movement, Vedanta wants to do its part towards ensuring these critical needs are met so that children can focus on that, which is the most important thing of all, their dreams. For Vedanta, the numbers tell the real story. More than 6,000 Nandghars are enablers of change and sustainable development with a presence in 14 states across India. The Nandghars aim to transform the lives of 8 crore children and 2 crore women across 13.7 lakh Anganwadis in the country. I would now like to request Priya, chairperson of 8ZL and non-executive director of Vedanta, who's also anchoring ESG at the organization and truly championing the cause of women and child development, to share a few words about the movement and the remarkable journey that Nandghar has embarked upon. Good evening and warm welcome to all. Thank you all for joining us today. Today is a little bit of my fault. I've been pushing my father for the past few months, few years that, you're always talking about business, always talking about numbers, but where your heart lies, the world should see it, and not only see it, but get inspired by it. It's very important, the kind of commitment he's made, the kind of commitment the family has made,
everyone across the country should get inspired, and this is how change will happen. This is how a movement will be made. My grandfather always believed in two principles and always said that a balance of these two principles are what makes a successful institution. He said artha and dharma. Artha is the value you create, and dharma is how you use that value to do better for your community or give back to social good. And with this, my father decided to commit 75% of his personal wealth back to social good. Established few years ago, as you already heard, Nandghar is synonymous with empowerment, empowering children to dream through the access of nutrition and education, and empowering women through skilling and healthcare. Our aim is to positively impact the lives of 8 crore children and 2 crore women, an aim we hope to accomplish in the near future. This movement isn't about providing food. It's about restoring hope and nurturing dreams for the next generation to thrive. And today, with a strength of 6,000 Nandghars across the country, we are one step closer to our vision of zero hunger. We are launching this movement with a simple question that comes almost intrinsically to us Indians. Indians are known for food, and we often ask each other, our parents, our friends, our children, khana khaya kya? Let us pledge that together, as a nation, we will ensure that no child goes to bed hungry. This simple question has the potential to harness the power of 1.4 billion Indians. And we all know that when a nation stands together, especially India, we can overcome anything. This statement holds the power to transform millions of lives and our future. Further, I'm delighted to announce that the ace actor, someone who our entire family is a huge fan of, Mr. Manoj Bajpayee, is joining our movement and lending his support to the cause. His journey from a young theatre actor to a celebrated star is inspiring, but his story also underscores the importance of support during challenging times. He understands the impact of hunger, and from this stems his connect to the cause of zero hunger. As we gather today, I urge every one of you to pledge to ask any child you see, "Khana khaya kya?" Let's give them a reason to smile, a reason to dream, and a reason to believe in a better tomorrow. We have set up a website where you can partner with us, whether by your time, volunteering with us, or with your expertise or any form of contribution. As we launch our movement, I invite organizations, civil society partners, corporates, and just all individuals, as every effort counts, and every act of kindness brings us one step closer to our goal. Let's make today the beginning of a movement that changes lives. Let's come together to transform the lives and work towards a brighter future for all. Thank you. Thank you, Priya, for those very inspiring words. The goal to ensure holistic development of children will not only build a better future, but also empower the nation to flourish in the years to come, as you so rightly mentioned. Keeping the spirit of philanthropy in our hearts, it is now my honor to invite Mr. Anil Agarwal, Chairman, Vedanta Group. A committed philanthropist, Mr. Anil Agarwal believes that businesses must give back to society and help them prosper. He has pledged, as Priya mentioned, 75% of his wealth for social impact and signed the Giving Pledge. Ladies and gentlemen, could we have a round of applause for that? Anilji is committed to promoting the well-being of communities with a particular focus on women and child development. His dream project, Nandghar, is developing model Anganwadis across India that are focused on eradicating child malnutrition, providing education, healthcare, and empowering women with skill development. And now it's my great pleasure to invite National Award winner, actor par excellence, needs no introduction, Padma Shri, Mr. Manoj Bajpayee. Just like Chairman Anilji, Manoj also hails from Bihar, a connect that I'm sure propelled him to join this movement. Manoj's story of success is that of grit and perseverance, a story we are all excited to hear about today. Anilji and Manoj. Could we have the unveiling of the plaque, please?
could I request for the AV to be played? एक्टिंग के लिए गांव छोड़ के दिल्ली आ गया। धीरे धीरे नाम होने लगा, वाहवाही होने लगी, अच्छा लगता था। आखिर एक कलाकार तारीफ का ही तो भूखा होता है कि नहीं? जी नहीं, एक स्ट्रगलिंग कलाकार खाने का भी उतना ही भूखा होता है। क्योंकि यकीन मानिए, आप कितने भी बड़े एक्टर क्यों ना हो, खाली पेट में से डायलॉग नहीं निकलते। अगर दोस्तों ने खाने पीने का जिम्मा ना उठाया होता तो भाई हम कब के गांव लौट गए होते। नंदघर का भी यह सपना है, इस देश का हर बच्चा हमारा आने वाला कल बिना खाए न सोए, वो सही पोषण पाए और अपने सपनों की उड़ान भर पाए। और उनकी इस पहल में मेरा पूरा सहयोग है, क्योंकि भूख सपनों के आड़े आ सकती है, ये मैं जानता हूं। इसीलिए आपसे भी कहूंगा कि आप नंदघर पे देखिए तो उससे पूछिए, सुनो खाना खाया क्या? हाँ खाया, आपने खाया? बहुत सारा। अगर बचपन से पूछा खाना खाया तो देश का कल बनाया। I'm sure all of you are looking forward to this Q&A. I know that I certainly am, because there's so many questions that I have of both these exemplary gentlemen. Anil sir, first of all to you. ये नंदघर का सफ़र आपने कैसे और क्यों शुरू किया? इसका कंसेप्शन कैसे हुआ? No, first of all, thank you very much. First May Day है, छुट्टी का दिन है, May Day is a Labor Day. सब लोग आप लोग आए, बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी तो मेरे छोटे भाई हैं, दो बिहारी सब पे भारी। गजब है जो स्ट्रगल इन्होंने की है। हम लोग 2-4-5 लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बिजनेस में, यहाँ वहाँ बिहार के, और हम लोगों ने कभी भी अपना बिहारी, प्राउड बिहारी होना, कभी उसके लिए हम झुके नहीं। हरदम हम अपने आप को प्राउड फील किए कि वी आर बिहारी। बहुत अच्छा लगता है। मनोज जी इतनी ऊंचाई पर गए, इतनी, और जब इन्होंने ये सुना, मेरे छोटे भाई भी हैं और हम लोग एक ही जगह से आते हैं, पुराना सपना देखा हुआ है, किस तरह से स्कूल गए, किस तरह से कभी हवाई चप्पल पहन के 14 साल तक चलते रहे, पता भी नहीं था जूता कैसे पहने जाते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही किया, यहाँ बम्बई आए तो ये सपना चल रहा था। अभी कोई मेरे को बोलता है कि आप बिलियनियर हैं या आप बड़े, मेरे को समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग में तो कुछ फ़र्क आया नहीं है। हम लोग तो वैसे के वैसे हैं, अंग्रेज़ों के साथ रहते हैं, बिज़नेस करना पड़ता है तो हम लोग छुरी काटा से भी खा लेते हैं, हाँ बस सब जमा भी लेते हैं। हम लोग तो 15 मिनट में हम लोग खाना खा लेते हैं, वहाँ अंग्रेज़ लोग 1.5 घंटा लगाते हैं। तो वो भी सीखा है। ये जो क्योंकि पुराना देखा हुआ था, हम लोग गवर्नमेंट नहीं है, हम लोग तो जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो दे दिया सो अपना है, जो रह गया वो सपना है। तो एक चीज़ को पकड़ के चलना था। मेरे में भी इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि कुछ इतना बड़ा कुछ करेंगे। मेरी बेटी बड़ी हुई, अमेरिका में पैदा हुई, वहाँ से उसी में वहीं पढ़ी, वहीं बड़ी हुई, और 10 साल पहले बोली मेरे को हिंदुस्तान ही जाना है, हिंदुस्तान में मेरे को रहना है, हिंदुस्तान में एनिमल बच्चों का देखना है। और उसने सपना भी दिखाया, सपना दिखाया कि मेरे को हिंदुस्तान के सारे बच्चों को खाना मिले। और हम लोगों ने शास्त्रों में भी पढ़ा, शास्त्रों में भी पढ़ा, आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 6 साल इनिशियल स्टेज में 6 साल तक बच्चों को जो पौष्टिक आहार दिया जाता है, जो पढ़ाई कराई जाती है, जो संस्कार दिए जाते हैं, उसके बाद सारे कॉस्मेटिक हैं। जो 6 साल तक अगर आपने उनको पढ़ा के, समझा के, संस्कार दे दिए और उनको पौष्टिक कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो वो आगे आगे बढ़ जाते हैं। और ये हम लोग अपने ऊपर गुजरे हुए हैं। जो हमारे माँ बाप
कुछ भी गरीब थे लेकिन संस्कार जो देते थे कि कोई भी घर में आए उनके पैर छुओ, कोई भी पहले आए तो उनको खाना दो, पहले एक रोटी गाय के लिए निकालो, जो जो हमारे संस्कार थे उसी से आज ये ऐसा आया कि करने वाला तो ईश्वर है, हम लोग तो निमित्त बन के बैठे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम इतना ज़बरदस्त हो रहा है और हमारे बच्चे ही आगे हैं, हमारी महिलाएं, मैं आपको वादे के साथ कह सकता हूँ, मैं पूरी दुनिया में रहता हूँ, जो महिलाएं हमारे यहाँ सक्षम हैं दुनिया में और कहीं नहीं है। उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो परिवार को चलाएंगी, अपने गांव को चलाएंगी। अगर सारे बच्चों को एक चीज़ हम प्रण कर लें कि हम एक ही चीज़ ले सकते हैं कि 8 करोड़ जो बच्चे हैं आज उनको पौष्टिक आहार मिले, उनका मनोबल ऊंचा रहे, संस्कार उनको मिले और एजुकेशन मिले, और ये सारा माध्यम आज जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से होना चाहिए। हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आनी बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी से फास्ट हो जाएगा, जल्दी से जल्दी हम इसको इम्प्रूव कर सकेंगे। तो यही ध्यान में आया और शुरुआत की थी 6 नंदघर से, आज 6000 हो गए हैं। आज प्रिया बोल रही है कि 16 लाख नंदघर करने हैं जिससे कि सारे बच्चे होंगे, और गवर्नमेंट ने भी बहुत साथ दिया, इतना साथ दिया, मैं कभी आपको विश्वास आप नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने भी बहुत साथ दिया। उन्होंने भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि ये ठीक से हो नहीं रहा था, उन्होंने भी साथ दिया, उसकी वजह से हम यहाँ पहुँचे। थैंक यू, थैंक यू। मनोज जी, एक सवाल आपसे कि यू आर वेरी डिसर्निंग व्हेन इट कम्स टू द कॉजेज दैट यू गिव योर नेम टू योर सपोर्ट टू, तो आपने कैसे नंदघर को चुना? यही धनराज विला में अनिल जी का न्योता आया था, निमंत्रण आया था मेरे पास, और मैं थोड़ा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ था जब मुझे फ़ोन आया कि अनिल जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, उसका हम लोगों के काम से कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है। तो मैं भी आया यहाँ पर, और यकीन नहीं मानेंगे आप कि हम लोग सिर्फ लिट्टी चोखा की बात करते रहे पूरी शाम, और मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रहा है, और ये बार बार उस समय इन्होंने लिट्टी चोखा और पता नहीं क्या क्या किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया था। करीब मैं 2 घंटे रहा यहाँ पे, फिर मुझे वापस जाना था क्योंकि काम पे भी लौटना होता है। लेकिन वो 2 घंटे में मैं अनिल अग्रवाल वेदांता के इतने बड़े दिग्गज से नहीं मिला। जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं किसी बिहार के किसी अपने सीनियर से मिल के आ रहा हूँ जो कि परिवार के सदस्य हैं। कहीं अभी भी मैं आते हुए क्योंकि इनका व्यक्तित्व इतना साधारण व्यक्तित्व है और इतना बड़ा एंटरप्राइज चलाते हैं, ये इस तरह का इनकी जर्नी रही है, लेकिन ये सारी बातें घूम फिर करके ये करते हैं मिट्टी की, ये बातें करते हैं परिवार की, अभी ही ये बातें कर रहे थे संस्कार की। दैट्स हाउ ही इज़। और उस पूरे दौरान इन्होंने जब अपने नंदघर और 8 करोड़ बच्चों को खाना देना, उनको सही परवरिश देना, उनकी शिक्षा का इंतज़ाम करना, 3 करोड़ महिलाओं को जॉब देना, ये पैसा तो सभी कमाते हैं, जिसका पैसा हम सब इस कमरे में बैठे हुए हम सब लोग मेहनत करते हैं, अपना एक सपना है और उससे हमको एक चेक आता है, दैट इज़ वन पार्ट। लेकिन हम उस काम के अलावा हम जाना कहाँ चाहते हैं? बहुत सारा अचीवमेंट तो हम कर लेंगे, कर भी रहे हैं, लेकिन आखिर क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल हर आदमी के दिमाग में रहता है। और मेरे ख्याल से अनिल अग्रवाल जी ने उस सवाल का जवाब बड़े कमाल ढूंढा कि उन्होंने अपनी 75% आमदनी जो है उन्होंने समाज को दे दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बड़ा इंस्पायरिंग है अनिल जी, बहुत ही, क्योंकि जब आप सड़क पे चल रहे होते हैं और अपने आसपास पूरी तरह दोनों तरफ देख रहे होते हैं, जाहिर सी बात है आप भी देखती होंगी, आप भी कलाकार हैं, सेंसिटिव हैं,
बहुत सारे ऐसे दृश्य आते हैं सामने जो कि आपको सहज नहीं रहने देते हैं, और उस समय आपको लगता है कि ऐसा आप में ख़ास क्या है जिसके कारण आप यहाँ पे हैं, और ऐसा ख़ास क्या नहीं है वहाँ पर कि वो वहाँ पे है। मैं भी तो वही हूँ, वो मैं हूँ। और वहाँ से शुरू होती है वहाँ तक की यात्रा जो अनिल जी ने बड़े कमाल ढंग से पूरी की है। और नंदघर के साथ उस रात को बैठने के बाद, बातें करने के बाद मुझे लगा कि ये इतना बड़ा मिशन है और इतना इतना बेहतरीन मिशन है कि शायद अगर जुड़ जाऊं तो वो थोड़े बहुत जो बुरे कर्म हैं कट जाएंगे। तो अंतोगत्वा जो है, आदमी को ये भी डर लगता है कि आपने सब कुछ समाज से, प्रकृति से लिया तो सही, दिया क्या? क्योंकि प्रकृति को अच्छा नहीं लगता है कि अगर आप सिर्फ उससे लें, क्योंकि जब प्रकृति से हम सिर्फ लेते रहते हैं तो उस प्रकृति जो है बाढ़ भेज देती है, प्रकृति सुनामी भेज देती है, ये रिमाइंड करने के लिए कि तूने बहुत ले लिया, अब देना शुरू कर मुझे। तो अनिल जी ने और जो बातें की मुझसे, तो मैंने अपने आप को पूरी तरीके से उसी समय मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, जैसा भी जिस रूप में हो। और ये जब हम बनाने के लिए गए थे, ये बड़ा मेरे लिए बहुत ही कमाल का अनुभव रहा। वो जो बच्ची जो आके बोलती है खाना खाए कि हाँ खाया, तुमने खाया, तो ये वो लड़की ने इम्प्रोवाइज किया था। मैंने कहा खाना खाया, तो उसने कहा हाँ खाया, तुमने खाया। तो बच्चों को जब मैंने वहाँ देखा और जिस तरह से जो खुशी देखी उनके चेहरे पे, और जितने कॉन्फिडेंट दिखे, और जो जितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनका पूरे तरीके से समर्पण देखा उन बच्चों के प्रति, उस सेंटर के प्रति, वो मुझे बहुत सारे सेंटर में विजिट कर चुका हूँ, उससे बहुत अलग लगा। तो इसका मतलब कि अनिल जी ब्लेस्ड हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इनके विजन को आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं और वो लेके जा रहे हैं। उसी में एक लाइन याद आती है, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो आप सपना आप देखते हैं, लेकिन जब आप चलना शुरू करते हैं तो कुछ दूर के बाद धीरे धीरे कोई ना कोई आपको मिलता जाता है। थैंक यू मनोज, थैंक यू। आपने इतनी सारी बातें इतनी खूबसूरती से बयान की। अक्सर कलाकार सोचते हैं ये बातें कि हम में क्या है जो अलग है, हम किस तरह से अलग हैं। एक्चुअली देने के लिए ही, वापस देने के लिए ही अपनी रोशनी जो हम ऑडियंस से लेते हैं उनको वापस देने के लिए ही हम लोग को मिली होती है जो भी सफलता। बट अनिल जी से मुझे एक जो आपने बात कही, बहुत जो थोड़ा सा समय हमने वेटिंग रूम में बिताया तो मुझे भी लगा कि जैसे एकदम मिट्टी की खुशबू आती है उनसे। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब अभी ये बोलेंगे कि चलो थोड़ा गन्ना तोड़ के लेके आते हैं, खाते हैं वहाँ पे चौराहे पे बैठ करके थोड़ा चाय पीते हैं बाजार में। ऐसा लगता है इनके साथ में। बहुत ही छोटा समय मैंने बिताया इनके साथ अभी। बट ये सेल्फ मेड जो हैं इनकी उपलब्धियों में एक ये भी बहुत बड़ी बात है कि वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन एक्चुअली द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी बिजनेस टू बी लिस्टेड एट द लंदन स्टॉक एक्सचेंज एंड मेकिंग इंडिया प्राउड इन सो मेनी वेज। तो आपका ये बिहार से जो सफ़र है मुंबई तक का, मुंबई चमक धमक शो फ्लैश इस सब का प्रतिबिंब है, तो यहाँ पे बिहार से मुंबई तक का जो सफ़र है आपने इस सिंप्लिसिटी और इस रूटेडनेस से कैसे कायम किया? हम लोग जब बिहार में रहते थे तो कुछ जो एंटरटेनमेंट था वो तो ज़्यादा पिक्चर ही रहता था। तो पिक्चर में हम लोग देखते थे कि डबल डेकर बस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, तो वही रहता था कि भाई अभी बम्बई जाना है। और हम लोग एक ही बॉटल वहाँ देखते थे उस समय 30-40 साल पहले, तो वो 69 की वो विस्की की बोतल दिखती थी, तो वो बैट 69 के वो ही दिखती थी। वो विलन के घर में होता था वो। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं पैसा आएगा तो बैट 69 पीऊंगा।
तो वो बेड 69 की बॉटल, तो सोचते रहते थे, कुछ पता भी नहीं था कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। लेकिन एक मौका मिला, 3 दिन लगे आने में बम्बई। मैंने इतना बड़ा रेलवे स्टेशन लाइफ में देखा नहीं था, फिल्म में देखा था। और बाहर निकलती डबल डेकर बस भी दिख गई, और बड़ी बड़ी मंजिलें भी जो दिख थी वो चल रही थी। और हमारा एक दोस्त जो था वो जेवियर्स कॉलेज में पढ़ता था, तो वो पटना का ही था, वो थोड़ा पैसे वाला था तो पहले आ गया था, और थोड़ा मॉडलिंग में सुंदर था, तो वो बिहारी था लेकिन पक्का मॉडलिंग भी कर रहा था। तो उसने मेरे को दिखाया, और यहाँ पे एक बिहारी लोगों में थोड़ा डर कम होता है, चांस ले लेते हैं, बोले चलिए ना देखेंगे क्या होगा। कोई आदमी डांट भी दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बगल से निकल जाते हैं। तो आप विश्वास कीजिए, जो हम लोगों की बम्बई में रहने के बाद शुरू में 10 साल में जो थिक स्किन हुई है, लोगों ने कमरे से निकाल दिया, बाहर कर दिया, कोई से रिकॉग्नाइज नहीं किया, बैंक वाला पैसा नहीं देता है। होटल में भी, ताजमहल होटल में घुसने में डर लगता था, कोई पूछे नहीं ले कौन हो भाई। वो मूछ वाला दरबान होता था पहले, दरबान होता था, उससे बहुत डर लगता था कि इसको पता चल जाएगा कि मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। तो ये मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं इस कारवां से गुजरा। मैं क्योंकि अपने आज के तो ये देखते देखते ये समझ में आया कि जो मज़ा देने में है, क्योंकि हम लोग भी जब शुरू में आए थे तो जिनसे उम्मीद नहीं थी उन्होंने दिया, और जिससे उम्मीद नहीं थी उन्होंने नहीं दिया। उनके घर गए जो कि हमारे थे, उनको था कि वो जाके गले लगाएंगे, अंदर बैठाएंगे, वो बाहर से ही बोले ठीक है फिर दोबारा मिलेंगे। अरे हम तो बक्सा वक्सा लेके आए थे रहने के लिए। तो और एक आदमी ऐसा मिला जिससे कोई पहचान नहीं थी, उसने गले लगाया, घर पे रखा। तो ये जो नंद घर का, हम लोग गवर्नमेंट तो है नहीं, हमारा था ये था कि आगे बढ़ते हैं। तो शुरू में तो कभी ऐसा मन में नहीं आया था कि 1000-2000 से ज़्यादा नंद घर करेंगे। तो हमारे गांव में क्या होता था कि गांव में हमारे बुजुर्ग लोग एक कुआं बना देंगे, एक स्कूल खोल देंगे, यही रहता था वहाँ पे पटना में, बिहार में, आसपास में। लेकिन पूरी सोसाइटी को चेंज कर देंगे, ये जब ये मन में आया तो पर्दा खुला। ये मेरी बेटी प्रिया ने मेरे को समझाया, बताया कि पापा आप आगे बढ़ेंगे दरवाज़ा खुलेगा। हमने गवर्नमेंट में बात की, ऋतु ने ज्वाइन किया, लोगों ने ज्वाइन किया। अब जो ये सपना आ रहा है, अब ये मेरे को साकार होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अभी हमने अब जैसे जितने पंचायत वाले हैं, क्योंकि हम लोग से क्वालिटी बनाना चाहते हैं और सारी चीज़ टेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं। जो हमारी दीवारें बनी हैं वो गर्मी में ठंडी हो जाती हैं और ठंड में गर्म हो जाती हैं। हमारे यहाँ सारे सोलार लगे हुए हैं, हर टीवी चैनल हमको एजुकेशन देने के लिए तैयार है। हमारे जो जितने भी हॉस्पिटल हैं वो अपनी वैन लगा देते हैं लेडीज़ को, बच्चों को हेल्थ केयर करने के लिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, अमेरिका की जितनी भी फूड फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो हमारे लिए डेवलप कर रही हैं कि खाना कितना खिलाएंगे, खाना आधा भी मिलेगा। तो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट होता है वो बना भी दिया है, चालू भी हुआ है। अगर एक कैप्सूल खा लेंगे, आधा भी खाना मिलेगा तो फुल न्यूट्रिशन मिलेगा। हमारी लेडीज़ में एनीमिया बहुत ज़बरदस्त है, उनमें हमको भी विश्वास भी नहीं होता था कि 16-17 साल के 18 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, 3-4 बच्चे हो जाते हैं, कम्प्लीटली एक्सप्लॉइटेड, कुछ मालूम नहीं है। तो वो हम लोगों ने जब आगे बढ़ के देखा तो कोई भी हमको आज तक एक ऐसी औरत नहीं मिली जो कि विलक्षण नहीं है, जिसमें बुद्धि नहीं है। हम आदमी लोग तो इधर उधर देखते रहते हैं, लेकिन अगर वो लेडीज़ को लगा दिया काम में, तो कोई भी एक आज तक ऐसी लेडीज़ नहीं मिली जो काम में नहीं लगी। किसी ने चक्की बना ली, किसी ने ब्यूटी पार्लर खोल लिया, लोगों ने मिलके बैंक खोल ली पैसे जमा करके, और वो काम आगे, कारवां आगे बढ़ता चला गया जैसे अब आप बताते जा रहे हैं। अभी जो है जितने भी पंचायत में ये हो गया है कि पंचायत में प्रेसिडेंट जो है और पंचायत के जो हेड हैं वो लेडीज़ ही होनी चाहिए, और लेडीज़ को सबसे पहला
एक माइंड सेट हो गया है गांव में कि आप कितने नंद घर चलाते हैं। वो पंचायत की लेडीज़ जो है वो नंद घर चलाती हैं, जितने एमएलए हैं एमएलए भी बोलते हैं कि आप। तो ये जो कारवां जुड़ा है एमएलए का, एमपी का, जितने हमारे आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं, ये हमारी माही हमारी ग्रैंड डॉटर है, ये रात दिन हमको सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ यही समझती है कि हम सबसे अंग्रेजी में बात करती है, मेरे से हिंदी में बात करती है कि नानू ज़्यादा समझेगा नहीं। तो अब हमारे जितने भी आईएएस ऑफिसर जो रिटायर हो रहे हैं वो लोग भी जुड़ना चाहते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम 10 नंदघर ले लें क्या आपके। और ये लोग जो, क्योंकि अकेले कुछ होगा नहीं, कारवां एक मूवमेंट है, ये एक मूवमेंट है जिसमें कि एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ये तो हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है। बहुत से लोगों ने वहाँ पे, पंचायत वालों ने शाम को कंप्यूटर क्लासेस चला दी, बहुत से लोगों ने वीकेंड पे फंक्शन के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, छोटी मोटी मैरिज के लिए वो जगह देनी चालू कर दी। एक गांव में जगह हो गई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब हम जाते हैं पंचायत वालों को, जब एक चाबी, एक गोल्डन की चाबी ऋतु बनाती है, उनको हैंडओवर करती है, उनको ऐसा प्राउड फील होता है कि हमको उसको देखने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो खुद ही संभालती हैं। तो ये जब ईश्वर चाहता है तो एक आंधी चलती है। ये आंधी चल गई है कि हिंदुस्तान में ये 1.6 मिलियन 16 लाख नंदघर बनेंगे और हमारे जितने 8 करोड़ बच्चे हैं उनको पौष्टिक आहार मिलेगा। अभी भी हम जितना आहार जिस तरह का देना चाहिए, एक प्राउड फील होना चाहिए कि हर बच्चे को ड्रेस मिले, हर बच्चा टेबल कुर्सी पे बैठ के खाना खाए, और एक ऐसी थाली जो हमारे यहाँ चलती है जिसमें कि वो कटोरियाँ बनी रहती हैं, 2-3 चीज़ें बने उसमें। और आप ये विश्वास मानिए, दुनिया का ऐसा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जितनी भी फूड कंपनियाँ हैं, हर कंपनी जो है हमको साथ देना चाहती है। उनके इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हैं। तो ये मूवमेंट चल रहा है, ये चल रहा है। जैसे जैसे इसमें इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, इसको आगे करते जा रहे हैं। लेडीज़ को भी हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से लेडीज़ आगे बढ़ रही हैं, आज बच्चे भी कम पैदा करती हैं, पैसा भी कमाती हैं, अपने परिवार को भी साथ देती हैं। तो ये हिंदुस्तान बदल रहा है। हम जहाँ भी एक हमने तो खाली एक हाथ लगाया है, वो अपने आप आगे बढ़ रहा है। वंडरफुल सर। एक छोटा सा सवाल और था कि आपने वैट 69 भी देख ली, डबल डेकर भी देख ली, लड़कियों का क्या हुआ? वो भी देखा ही खाली। हमारे हमको इतनी शादी करने की इच्छा थी, मैं बाबूजी को पटना जाके बोलता था कि मेरी शादी करवा दीजिए। बोले नहीं अभी तो तू 20 साल का ही है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप शादी करवा दीजिए, खाने बनाने के लिए कोई चाहिए। अब शादी तो हो गई, शादी तो 20 साल में हो गई। उसकी 16 साल की थी, 9th क्लास में पढ़ती थी। पहले तो उसकी बड़ी बहन से होने वाली थी। हमारे फादर इन लॉ जो थे वो थोड़े कंजर्वेटिव थे, वो बोले कि बम्बई जा रहा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। उन्होंने उसकी की नहीं, ये छोटी थी। हमारे बाबूजी के दोस्त थे तो बोले कि इससे कर लेते हैं। इसको समझाया कि भाई ये बोली तो मैं तो भी 8th पास करके 9th में गई हूँ, मेरी शादी करेंगे। तो हम लोग के टाइम में लड़कियों से मिल नहीं सकते थे, लड़कियों से मिल नहीं सकते थे। बातचीत हो गई अपना, ठीक है। उसके बाद तो हमको मौका मिल गया कि भाई 5 मिनट बात करने का। तो उससे हम पूछे कि भाई तुम ठीक हो ना, बम्बई चलने के लिए तैयार हो? सब बोले मेरे को क्या मालूम, पापा ने कहा है कि बम्बई जाके रहोगी और बम्बई में राजेश खन्ना रहता है, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। ये शादी जो मैं बोलता हूँ, मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मेरा एक एक मिनट, एक एक टाइम, तकलीफें आती तो उसमें और भी मजा आता है। हम लोग फुल प्रूफ हो गए हैं, कुछ भी हो जाता है तो कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हुआ कि लोग मिलते चले गए, ये भी भाग्यशाली रहते हैं। हमारे यहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं। आप एक आदमी से भी बात कर लीजिए, हमारे यहाँ यूनियन नहीं है बाय एंड लार्ज, और हर आदमी ये समझता है कि ये काम हम देश के लिए कर रहे हैं। हम तो एक निमित्त हैं जो उनको साथ में लगा रहे हैं। उनको मालूम है कि ये कंपनी मेरी है, मैं इस कंपनी को चलाऊंगा
और ये कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं। ये भी ईश्वर की कृपा होती है तभी होता है। बहुत बहुत। मनोज जी, जब आपने इस कैंपेन में बोला कि ऐसा समय था जब खाने का आपको थोड़ी तकलीफ़ थी बॉम्बे में, मैं खुद दिल्ली से हूँ, आपको पता है, यहाँ आई हूँ। ये शहर बहुत इंटिमिडेटिंग हो सकता है और बहुत मुश्किल भी हो सकता है। किस तरह की, थोड़ा सा उस बिगिनिंग ईयर्स का थोड़ा सा बताइए ना। देखिए, जो संघर्ष था वो ज़्यादातर कि पेट कैसे भरें, इस बात को लेकर के बहुत अधिक था। क्यों, मैं 18.5 साल की उम्र में करीब गांव से मैं दिल्ली आया था। तो दिल्ली में मुझे ग्रेजुएशन करना था। ग्रेजुएशन एक फॉर्मेलिटी थी, वो अपने बाबूजी को थोड़ा मनाने के लिए कि भाई मैं कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ, ग्रेजुएट हो रहा हूँ। लेकिन मैं थिएटर बहुत करता था। मैं कई सारे विजुअल्स हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। मुझे याद है कि और मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो दोस्त यार ही जो थे वही जो है मदद करते थे, चाहे कपड़ा हो चाहे चप्पल हो। तो मैं, जैसे कि उन्होंने शुरू में कहा था हवाई चप्पल, मैं सच में जूता कई साल नहीं पहना है मैंने, कई साल। बहुत हवाई चप्पल, फिर हवाई चप्पल से प्रमोट होकर के चमड़े के चप्पल पे आया। तो दिल्ली शहर में पैसा पॉकेट में नहीं है। आप दोस्त आपको सिनेमा लेके जा रहे हैं और आपको भूख लगी है। अब आप बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो सिनेमा तो दिखा रहे हैं। अब उसको आप ये नहीं बोल सकते कि तू कुछ खिला दे मुझे, क्योंकि उसको नहीं पता है कि मैंने नाश्ता नहीं किया है और मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं बाहर ही हूँ, अपने कमरे में गया नहीं हूँ। क्योंकि कमरे में जब जाते थे तो 3-4 लोग रहते थे, वो कुछ ना कुछ बना लेते थे अपना, और हमारे पास पैसे वो ज़्यादा नहीं होते थे तो वो अपनी तरफ से भर भी देते थे किटी में। लेकिन आप बाहर हैं, तो मुझे याद है कि दिल्ली में केले बेचते हैं लोग ठेले पे, आपको पता है ना। तो मुझे वो विजुअल अभी भी याद है। मुझे केला इतना कभी अच्छा नहीं लगा था और ये रोज़ की जद्दोजहद थी। मतलब आप बम्बई शहर में भी बड़ा पाव तो अच्छा है, लोग शौक से खाते हैं, कभी कभी चलो आज बड़ा पाव का मन करता है। मेरे लिए बड़ा पाव जो था वो एक लग्जरी आइटम हुआ करता था कि आज बड़ा पाव का पैसा है, आज बड़ा पाव मिलेगा। ऐसा लगता था जैसे कि पकवान है बड़ा पाव। वो इसीलिए मैं इनके पूरी जो मुहिम है हैशटैग खाना खाया क्या, ये मुझे बड़े अंदर दिल तक को छूती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बड़ा वास्ट है इस मामले में। खाली पेट का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है वो कभी 2-2 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, भूख लग रही तो पानी पी रहे हैं आप, किसी पानी पी करके आप सोच रहे हैं कि शाम को मिल जाएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा जिसको मैं बोल दूंगा कि तू खिला दे। फिर मुंबई शहर में मैंने एक थोड़ा बिहारी आदमी हूँ तो थोड़ी चालाकी करनी शुरू की। कुछ एक दोस्त थे मेरे जो अच्छा कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलने 1 बजे जाता था कि 1 बजे का टाइम ऐसा है कि ये या तो खाना खाने बैठने वाले होंगे या खाना खा रहे होंगे। तो फिर मैंने पेट भरने के लिए ये सब चालाकियाँ करनी शुरू की मैंने। सो आई रिलेट टू दैट फीलिंग कि मर्जी से जब आप भूखे नहीं रहते हैं ना। अब आजकल हम मर्जी से रहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। आप मर्जी से आप भूखे नहीं होते हैं और आप छोटे बच्चे हैं, ये आपको पूरे लाइफ को इम्पैक्ट करता है। भूखा जो बच्चा होता है और जब बड़ा हो रहा होता है, क्योंकि मैंने फेस किया है इसलिए मैं कह सकता हूँ इसका, कि जब भूखा जब बच्चा रहता है ना ज़्यादा समय तक, वो पूरे तरीके से आप एक असुरक्षित समाज आप पैदा करते हैं। अगर बच्चा भूखा रहे तो, अगर बच्चा भूखा रहेगा तो वो समझौता जीवन भर करता रहेगा, क्योंकि उसको वो पल, वो अनुभव उसको वापस नहीं लेना है। उससे आप आत्मविश्वास लेते हैं, आप उससे सुरक्षा की भावना ले लेते हैं,
उससे हर तरीके का कॉन्फिडेंस आप ले लेते हैं, आप एक डरा हुआ जनरेशन पैदा करते हैं फिर। इसीलिए अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने और वेदांता और आपकी टीम ने इतनी बड़ी मुहिम, इतना बड़ा सपना देखा और ये मुहिम शुरू की है, क्योंकि मुझे पता है कि भूख क्या होती है, और बच्चा भूखा रहना मतलब समाज भूखा रहना, आगे की पीढ़ी को भूखा रखना। थैंक यू मनोज। इतने सारे लोग हैं जो सपने देखते हैं, और बच्चों का काम है, जैसे नंदघर का मिशन भी है कि अगर पेट भरा होगा तो आप सपने भी देख सकते हैं, नहीं तो खाना ही सपना बन जाता है, मात्र वही आपका सबसे बड़ा सपना होता है। थैंक यू फॉर शेयरिंग सच पर्सनल डिटेल्स, इट्स रियली 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 इंस्पायरिंग। अनिल जी, ये बिहार से मुंबई का जो सफ़र जिसके बारे में हमने बात की, वो इतना इंस्पायरिंग है इतने लोगों के लिए। इतना बड़ा जो हम लोग फिल्म में बोलते हैं कैरेक्टर आर्क, इतना बड़ा जो आर्क है, उसकी मतलब क्या मंत्रा है, सक्सेस मंत्रा, या अगर आप बोलेंगे कि एक इंस्पिरेशन यूथ के लिए, अगर आप एक दो कुछ विशेष पॉइंट्स बता सकें जो आपने ज़िंदगी से निचोड़े हैं, वो ज़रा प्लीज़ शेयर कीजिए। ये तो आज के यूथ का टाइम है। हिंदुस्तान में जो यूथ है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और जो हम लोगों ने तो देखा है, जो आज जो टाइम आया है उस टाइम में आज मेरे को मालूम है कि नौकरियों की कमी है, लेकिन जो अंदर में जो एक आगे बढ़ने की तमन्ना है, जैसे मैं भी अगर यहाँ से बिहार से चला तो बॉम्बे पहुँचा, बॉम्बे में रहा तो बॉम्बे ने किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, तो लोगों ने कहा कि लंदन बहुत अच्छा है, तो लंदन चले गए, लंदन में रिकॉग्नाइज़ नहीं किया तो अमेरिका चले गए। किसी ने कहा कि अगर अमेरिकन पासपोर्ट आपकी फैमिली में होगा तो आप पास पैसा आ जाएगा, तो बीवी को परसुएट किया कि एक बच्चा अमेरिका में पैदा कर लो, तो बोली कि हो गया मेरा, तो बोला नहीं एक अमेरिकन पासपोर्ट चाहिए। तो हम लोग ऐसे लोग हैं कि जो आगे बढ़ते रहते हैं और दरवाज़ा खुलता रहता है। तो आज का टाइम ये यूथ का टाइम है। आज यूथ के टाइम को पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात होती है कि इतने पढ़ लिखे जाते हैं तो छोटा काम नहीं कर पाते हैं। छोटा और बड़े काम में कोई फ़र्क नहीं है। एंटरप्रेन्योर की जगह को एंटरप्रेन्योर मेरे को बहुत अच्छा लगता है वर्ड, कि को एंटरप्रेन्योर के बाद में वो एंटरप्रेन्योर बने। अगर आपको पैसा कम भी मिले तो भी आप एक एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़िए। एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ेंगे तो उसका हाव भाव दिखेंगे, उनको समझेंगे कैसे वो काम करता है, तो एक दिन आप भी आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। इन्होंने कभी अभी मेरे को कहा कि मेरे को चेक से पैसा मिलता था। एक टाइम था खाली कैश में ही मिलता था, तो अभी आज टाइम ऐसा आ गया कि चेक से मिलता है। तो ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो बदलाव आ रहा है हिंदुस्तान में, दिस इज़ द टाइम फॉर स्पेशली फॉर द गर्ल्स। इंडियन गर्ल्स आर सो मच कैपेबल विच इज़ नो बडी इज़ कैपेबल। मैं हर पेरेंट्स को बोलता हूँ, हर लोगों को बोलता हूँ कि अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाइए। वो डिफरेंट हैं, वो आदमियों से अलग हैं। वो उनमें जो क्षमता है, उनमें जो काम करने की, ज़्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, उनको एक मौका दीजिए। वो फ्रंट लाइन पे आ जाएंगी। आज जब हमने 26 जनवरी की पैरेड देखी तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ जब लोगों ने बताया कि 80% उसमें लड़कियां ही थी। जब इस तरह का चाहे प्लेन उड़ाना हो, चाहे टैंकर चलाना हो, चाहे कुछ करना हो, तो आज यूथ का टाइम है। मेहनत करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉजिटिव माइंड रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और हिंदुस्तान में खर्चा भी बहुत कम है। अब जो इतने सारे शहर बन रहे हैं, हमारी हिंदुस्तान जो है फैक्ट्री टू द वर्ल्ड होने वाली है, क्योंकि हर चीज़ हम सस्ते में बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। एंटरप्रेन्योर के साथ शायद आप जुड़ेंगे। पूरे दुनिया के लोग हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं और ये मौका आया है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और ये हमारी लड़कियां भी इस देश को आगे बढ़ाएंगी। हर क्षेत्र में मेरे को लगता है, फिल्में भी जो हैं आज के दिन फिल्म अभी भी दबी हुई हैं,
बड़े बड़े कॉरपोरेट सारे यहाँ पे आ रहे हैं। हिंदी मूवी का भी हमने देखा तीन चार ड्रामा इंग्लैंड में हुए जो कि यहाँ से गए, इतने फेमस हुए कि वो एक एक महीने तक चले, एक एक महीने तक चले। जो हमारे यहाँ कलाकारी है हर क्षेत्र में, क्योंकि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। हमारे यहाँ हमारे यहाँ तो हम लोग 25 साल पीछे हैं लाइफस्टाइल में लोगों के। तो लाइफस्टाइल की जो चीज़ें चाहिए वो जो यहाँ पे अपने को, जैसे हमारे यहाँ अगर कोई आदमी को बोले भाई हम ऑफिस अपना 5 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, 10 किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं, तो बोलेगा मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। उनको एक सिस्टम हो जाता है, उनको एक बार में एक ही काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक बार में 4 काम कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। हमारे यूथ ही इस देश को आगे बढ़ाएंगे। यूथ बहुत समझदार हैं। मेरे को इतना आश है इंडिया पे, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं रहता हूँ, लोग बोलते हैं आप लंदन में क्यों रहते हैं, आप अमेरिका में क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिला। मेरे आप कौन हैं उसी में मैं रह गया। वहाँ गया, वहाँ लोगों ने पूछा नहीं। मेरे को जितना पैसा वहाँ मिला, मैंने सारा पैसा हिंदुस्तान में लगाया। हिंदुस्तान से लोग बाहर ले जाते हैं, हम वहाँ से यहाँ लेके आए। कई बार मौके लगे लगे और हरदम यही सोचता रहा कि बीवी भी सिंपल है, हम भी सिंपल हैं। आज तक सैलरी के अलावा कुछ पैसा लिया नहीं। सैलरी बहुत थी, बीवी को दे दिया, मेरे को 200 पाउंड देती है, वो भी बच जाते हैं, वो अपना उसका हिसाब पूछ लेती है, तो मेरा काम हो जाता है। तो जो वहाँ हम इसलिए गए कि वहाँ पे मेरे को पैसा मिला, उस पैसे को हम लेके आए। और मैं कोई नॉर्मल भी काम नहीं करना चाहता था, हरदम एक ऐसा काम करना चाहता हूँ जो कि असंभव हो, जो डिफ़िकल्ट हो। उसमें मेरे को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें एक मज़ा है। कंफर्ट जोन से निकल के हम लोग जब तक डिस्कम्फर्ट जोन में नहीं जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे यूथ का, लड़कियों का यही कहना है कि प्लीज़ प्लीज़ लड़कियों को आगे बढ़ाएं। लड़के हिम्मत करें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। फेलियर इज़ द लैडर फॉर द सक्सेस। Some wonderful gems you have given us. Flexibility, failure is the ladder for success. We will remember this, I think, all of us here. आप अपने माँ जी और बाबू जी को जब नंदघर लेके गए थे, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था? हम लोग तो उसी में हमारे तो कभी कोई हॉलीडे तो होती नहीं थी। गर्मी की छुट्टी हुई तो नानी के घर चले गए, ज़्यादा से ज़्यादा वही होता था। तो नानी इतने प्यार से, हम लोग यहाँ कोई आई लव यू कभी बोला नहीं जाता था। नानी के घर आई लव यू बोलना है तो कुछ खाना खिला देती थी, तो उसी का मतलब है कि आई लव यू हो गया। हमारे यहाँ हमारे ये सब हमने देखा है कि खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। खाना कितना इम्पोर्टेंट होता है। हमारे माँ बाबू जी, हमारे दादाजी, दादी जी, हमारे नाना जी, नानी जी, इन लोगों की प्रभाव मेरे दिमाग में रात दिन रहता है कि माँ जो है खाने के लिए बैठने नहीं देती थी। पहला रोटी बोलती नीचे गाय को दे क्या, एक रोटी कुत्ते को दे क्या। तो मैं समझ भूख लग रही है, नहीं। लेकिन मेरे को अभी भी याद है, थोड़ा छोटी रोटी बनाती थी, तो मेरे को कि अपना कमी रहती थी। तो ये हमारे जो संस्कार मिले हमको माँ बाबू जी से, हमारे दादाजी से, दादी जी से। अब दादाजी हरदम बोलते रहते थे कि देखो बेटा, जान चली जाए लेकिन धंधा नहीं जाए। जो प्रोफेशन है वो चालू रहे। जान चली जाए लेकिन धंधा जो है, जो भी तुम प्रोफेशन में हो, जो भी काम हो वो चलता रहे। तो ये दिमाग में रहता था कि काम जो है, जो कहीं मैंने नौकरी भी की, वहाँ भी काम किया, सब जगह काम किया। तो उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं का आशीर्वाद है। आप कर क्या सकते हो। मेरी माँ 92 की है, 20 साल वो लंदन में रही, अभी यहाँ है। डॉक्टर ने कहा है कि आप उसको लंदन लेके नहीं जाओ। मैं बोला ना, मैं तो लेके जाऊँगा।
मेरे बगल वाले कमरे में रहेगी। मैं ज़्यादा सेंटिमेंटल भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को मेरी माँ मेरे बगल में चाहिए। मैं सुबह माँ का दर्शन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ, सोच लेता हूँ, वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा। हम क्या कर सकते हैं, हम तो निमित्त हैं। अपने आप को ज़बरदस्ती बोलते हैं बड़ा, करने वाला कोई और है, कराने वाला कोई और है, आप तो एक निमित्त हो। वो तो हुआ है। तो इसलिए मैं हमारे बाबूजी की डेथ हो गई 2-2.5 साल पहले हो गई। उनको भी मैंने ये सब ब्रिटिश पासपोर्ट है, मैंने आज तक अपना इंडियन पासपोर्ट रखा है। मेरे को इंडियन पासपोर्ट से इतना लगाव है कि मेरे को इंडिया इंडिया और इंडिया ही दिखता है। और कभी बिहारी और इंडिया, दो ही चीज़ हम समझ में आता है, और मेरे को कुछ ज़्यादा समझ में आता नहीं है। थोड़ा यूपी भी समझते हैं क्योंकि हम लोग बॉर्डर में थे, देखते थे। भोजपुरी गाना भी गा लेते हैं, भोजपुरी बात भी कर लेते हैं, मैथिली भी बोल लेते हैं। अहाँ के की हाल चाल छे, कहाँ आपने कौन बाज रहे छे, ये सब भी कर लेते हैं। ये बहुत बढ़िया भोजपुरी बोलते हैं। मेरे को भोजपुरी बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, लेकिन भोजपुरी अगर आप खराब बोलेंगे ना तो अच्छा नहीं है। इसलिए भोजपुरी अच्छी तरह से बोलनी चाहिए। तो हमरा से बतियाई अपने कि हम दोबारा बतियाते हेलो बतियाना, और ये हमारी और 2 लाइनें अगर आप गा देंगे तो आई थिंक एवरीवन विल बी वेरी थ्रिल्ड। क्या बोलते हैं आप लोग? अबाउट टू लाइन्स। हमको कुछ याद तो नहीं है। हम लोग जब बचपन में थे तो पिक्चर देखने जाते थे, उसमें बिहारी गाना आता था, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, सैया से कर द मिलनवा, हाय राम सैया से कर द मिलनवा। We would very much like now to continue talking, but I think the media also wants to have their time with our 2 fine panelists. So we'd like to throw questions open to the media now. Or employees, either set. The floor is open for questions now. हेलो सर, साक्षी शर्मा फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। जैसे अभी आप लोगों की बिहार की बात हो रही थी और आप मुंबई में भी रहते हो, तो अब के जनरेशन में आपको क्या लगता है, बिहार में क्या कुछ चेंजेस है और मुंबई में क्या कुछ चेंजेस है, दोनों में क्या कुछ डिफरेंस है? You want me to answer? यस। Okay, I see a lot of infrastructural development in Bihar. It took me 4 days to reach Delhi when I was leaving my village. There was no frequency of transportation those days. From my village to a nearby town, one had to really rely upon all the passerbys who who had motorcycles or tractors or trailers, going towards this small town. And then you take the lift, put your luggage, there, and then you go to the small town. Then from there to the district town, then you have to stay one night there. Next day, you wait for the bus that goes to Muzaffarpur. Muzaffarpur, today it takes 2.5 hours. Those days it used to take 5 hours. And then from Muzaffarpur to Patna was another story. So from that time to this time, when I land in Patna, I reach my village in 6.5 hours flat. So the transport communication, if it is, the growth has been everywhere, even in Bihar. In Mumbai is a city which is unrecognizable now, I would say. Also because of the influx of the population which is coming from outside. Because it's a biggest city, it's a financial city, it has opportunity for everyone who is coming from outside. It has the capacity to consume everyone, and it really tests you, tries you. But in the end, if you really decide to stay back in this city, everyone finds their place. Mumbai really helps them to
to reach that, to really accomplish everything that they always wanted to accomplish. The only thing is, I see so many small towns growing. I see villages growing. I see transportations and communication and roads. All of these aspects of development really happening rapidly everywhere. I just wish Mumbai roads, I could say the same thing about, you know, it's such a lovely city, such lovely culture. I think it has given us, all of us, everything. I mean, Anilji was talking about it, Tiska is here, and so many of you here. We don't have any complaint from Mumbai. The only thing the only wish I have, a dream I have, that before we say, you know, goodbye, this city should reach its zenith in beauty. You know, that's the only wish I have. One fantastic example, when we were driving, both of us live in the suburbs, we were driving here, the tunnel is such a amazing, you know, addition to Mumbai. One other thing would be walking paths. Yes. There's no place to walk in this city, that's the other thing. Any other questions that Anil ji, namaskar. Manoj ji and Tiska, thank you for being here today and actually, you know, walking us through this. Anil ji, मैं बहुत वर्षों से आपका एक बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ और मैं आपसे ये भी बताऊँ कि जहाँ व्यवसाय, इंडस्ट्री, बिजनेस की बात होती है, फॉलो करते हैं आप, दिग्गज हैं. लेकिन कुछ महीनों पहले मैंने लिंक्डइन पर आपकी एक सीरीज़ देखी जिसमें कि किस तरह से आप बिहार से आए मुंबई में और किस तरह शुरुआत में बहुत सारी दिक्कतें हुई जिनका भी अभी आपने आज जिक्र किया. तो बहुत प्रेरक रहे हैं आप हमेशा. और मनोज जी ने कहा अभी कि आई होप दैट एंड आई वांट टू सी दिस सिटी रीचिंग इट्स जेनिथ. मुझे ये लगता है, मैं पहले तो अब धन्यवाद करूं आपका नंदघर के लिए, क्योंकि नंदघर जैसी दिल से चलाई हुई मिशन से सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश अपने जेनिथ पर पहुंचेगा. मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक विचार था मन में, सॉरी, लेकिन ये था कि जिस तरह से आप एक यू बिकम अ बीकन फॉर दिस, तो बाकी जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, बहुत सारे हैं, सब अपनी अपनी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, लेकिन अगर आप सबको जोड़ करके और सबको एक तरह से और प्रोत्साहन दें तो शायद पूरे देश का जो है ना उद्धार हो सकता है. तो उस बारे में आपने सोचा है कि नंदघर को किस तरह से और भी फैलाया जाए? आपने बहुत बड़ा एक टारगेट नंबर दिया है बच्चों के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, तो आगे का क्या विजन है आपका? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इस पर रुकेंगे नहीं, लेकिन कुछ प्रोत्साहन सभी के लिए, हम अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे और कॉरपोरेट्स अपने लेवल पे देश के लिए क्या कर सकते हैं? फार्मूला तो सबका, चाहे बिजनेस चलाओ चाहे नंदघर चलाओ, फार्मूला तो एक जैसा ही होता है कि अपने सिस्टम बनाएं, लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को प्रोत्साहन दें, क्योंकि बाहर में सब लोगों को कुछ करना है. बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन अपनी चीज़ें सबसे अच्छी बेच सकता है? हमको 16 लाख ये 1.6 मिलियन नंदघर बनाने हैं, 8 करोड़ बच्चों को देखना है, और मेरे को अपने जीवन काल में देखना. ये प्रेरणा मेरे को मेरी बेटी से मिली और ये काम हो के रहेगा, ये काम हो के रहेगा जिसमें एक भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा, उसको संस्कार मिलेंगे. संस्कार क्या होते हैं? मैं लंदन में भी स्कूल चलाता हूँ. हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कार का मतलब होता है कि अपने माँ बाप के पैर छुओ, अपने समाज की जितने लोग हैं उनकी सेवा करो, कोई गाली गलौज नहीं करो. ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं. हमारे यहाँ बिहार में छठ की पूजा होती थी. हम लोग अनवरत हर साल 11 साल की उम्र में लड़कियां जो हैं कुछ कपड़ा ज़्यादा पहनी हुई नहीं रहती थी, लेकिन आंखें इतनी पवित्र रहती थी हम लोगों की कि वो शाम को सूरज भगवान की पूजा होती थी, और डगरा लिए हुए यहाँ से वहाँ तक संतूर लगाए हुए, तो सर्विस करने में हम लोग को मज़ा आता था. तो वो टाइम हम लोगों ने देखा है. तो मेरे को लगता है कि सारे कॉरपोरेट भी अपने अपने तरीके से कर रहे हैं.
सबके अपने अपने राम होते हैं, मैंने सुना उनको सबके अपने अपने राम होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेरणा होती है। मेरे को ये प्रेरणा आई कि मैं इस काम को करूं, और मेरी बार बार मैं बोल रहा हूँ, मेरी बेटी ने मेरे को बहुत पुश किया, क्योंकि मैं 5-10 हज़ार से ज़्यादा करने वाला नहीं था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरे को मोक्ष चाहिए। मेरे को मोक्ष तभी मिलेगा जब मैं बिहार के लिए कुछ करूं। जब हमने बिहार देखा था तो हमारे यहाँ बिहार में ही सारी फैक्ट्रियाँ लगती थी, हमारे बिहार में ही बेस्ट इंस्टीट्यूशन थे, हमारे बिहार में ही सारे बड़े से बड़े लीडर बनते थे, वहीं सब कुछ होता है। तो सबका अपना अपना टाइम ऊपर जाता है, नीचे जाता है। मेरे को झारखंड अलग हो गया, उससे फ़र्क हो गया, स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, लेकिन वहाँ के लोगों में काम करने की क्षमता है। मेरे 2 अभिप्राय बहुत ज़बरदस्त हैं। एक तो कि नंदघर की हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बिहार, यूपी उस एरिया में दें जहाँ की प्राथमिकता हो, जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खाने की, पढ़ाई की। 6 साल तक की, मैंने 7 साल तक के बच्चों का रखा है। और लेडीज़ में इतनी क्षमता है कि लेडीज़ अपने आप में, हमारी जितनी बिहार की, यूपी की लेडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, उनमें क्षमता आ जाए, वो काम करें। और इतना फास्ट हो रहा है काम, हम 15-20 दिन में नंदघर तैयार कर देते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, डेजर्ट एरिया में भी हमने बोरवेल किया है, वहाँ पानी निकल गया। आप एक कदम बढ़ाते हैं तो दूसरा कदम ईश्वर बढ़ाता ही बढ़ाता है। तो ये एक मेरा सपना है कि नंदघर हम वहाँ करें। मेरी बहुत इच्छा है, मेरे पास इतने ज़्यादा आते हैं कि आप बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं करते हैं। मेरे को बिहार से अलावा और कहीं जमता भी नहीं है, लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाती है, एक पॉलिसी उनकी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हमको पैसे बैंक से लेने हैं, हमको पैसे शेयर होल्डर से लेने हैं, हम सेंटिमेंट में वो काम नहीं कर सकते, हमको दिमाग से काम करना पड़ेगा। जब दिमाग से काम करते हैं तो सही काम होना चाहिए, सही ढंग से चलना चाहिए। तो 2 चीज़ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, ईश्वर अगर साथ देगा तो। नंदघर जो पिछड़े एरिया हैं, जो हमारे पिछड़े जो राज्य हैं, कहीं के भी हों, पूरे हिंदुस्तान हमारा है, तो वहाँ पे नंदघर बने और बहुत फास्ट बने। और उनको मैं हैंडओवर, पंचायत वालों को हैंडओवर कर देना चाहता हूँ। और उनको हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं कि वो डिसिप्लिन आप मेंटेन रखें। तो वो हार्डवेयर हम सब जगह खुद के पैसे से बनाएंगे। बाहर के जो न्यूट्रिशन जो सप्लीमेंट होते हैं, जो न्यूट्रिशन बार होते हैं, बाहर के सारे लोग तैयार हैं, वो उनको दें। और एक प्राउड फील कराएं बच्चों में। कभी कभी क्या होता है कि पुराना टाइम चलाया हुआ है जिसमें कि नंदघर में भेजना, आंगनवाड़ी में भेजना, लगता है कि गरीब के बच्चे जाते हैं। वो मैं हटा देना चाहता हूँ कि नंदघर के बच्चे अच्छे, ज़्यादा शिक्षित होते हैं, अच्छे पौष्टिक रहते हैं। नंदघर की जो महिलाएं हैं, वो एक भी महिला ऐसी नहीं है जो कि वो पैसा नहीं कमा रही है। आप देख लीजिए, वॉलमार्ट देख लीजिए, बाहर के अमेरिकन जितनी भी कंपनियां देख लीजिए, वो सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो स्कीम चाहती हैं, स्ट्रक्चर चाहती हैं। तो ये एक तो मेरा नंदघर का बहुत बड़ा सपना है। दूसरा बिज़नेस का है। ये हम समझते हैं बिज़नेस को, बिहार में हम बिज़नेस करें और हर काम को, डिफ़िकल्ट काम को करने में मेरे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं आती है। और मेरे को वही अच्छा लगता है जिससे कि डिफ़िकल्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अगर सीधा सीधा काम करेंगे तो हर आदमी करेगा। मनोज जी जब अपना एक्टिंग करते हैं तो कुछ अजब ही करने लगते हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। लेकिन एक उसका जो मज़ा है वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो यही हमारे बिहार का, पिछड़े राज्यों का ख्वाब है। आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, जिससे कि, और ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, कुछ सालों में ये आगे बढ़ेगा। सारी दुनिया इसी मूवमेंट के हिसाब से जुड़ेगी और इसको हम सक्सेस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सब लोगों ने सवाल पूछे और मैंने लिखे हुए सवाल पूछे। मेरे अपने 2 सवाल हैं, एक मनोज के लिए और एक सर आपके लिए। अगर आप फिल्म प्रोड्यूस करते, कोई भी हिंदुस्तानी कोई भी फिल्म या इंग्लिश फिल्म भी, तो आप कौन सी प्रोड्यूस करते? अगर कोई आपकी चहेती फिल्म होती तो आप कौन सी प्रोड्यूस करते? हम तो हिंदी फिल्म कोई छोड़ते नहीं हैं, कहीं ना कहीं आगे पीछे करके। अभी हमारे पास एक हमारा दोस्त है, बहुत बड़ा आदमी था, वो हम हिंदुस्तानी था, मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो लंदन में आया 2 बजे, तो वो इस कोशिश में था कि वो बोला कि
कोशिश में था कि 3 से 6 पिक्चर हम लोग साथ में देख लेंगे, दोस्त है। लेकिन वो फाइल वाइल लेके आया था, हमको भी बहुत, हम बहुत मीटिंग है, अभी 2 बजे मीटिंग है, फिर 2:15 बजे मीटिंग है, फिर 2:30 बजे मीटिंग है, 3 बजे मीटिंग है। तो वो अपना बेचारा उठ के चला गया, बोला हमारा भी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, हम भी जा रहे हैं मीटिंग में। ठीक है भाई जाओ। हम जैसे ही वो गया, उठ के जाके अपना मूवी लगा था, उसमें जाके बैठ गए। अब कोई मूवी देखना था हमको, और एक फाइल ले लिया बगल में, लोगों को दिखाया कि मीटिंग के जा रहे हैं, वहाँ चले गए। जब इंटरवल हुआ तो देखा वो पीछे में वो भी बैठा हुआ है। तो मूवी तो सभी अच्छी लगती है, वो इनकी तो सारी मूवी हमको बहुत अच्छी लगती है। हमारे पंकज जी भी हैं, वो भी गजब काम कर रहे हैं। हम लोग तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को, हम लोग छोटे थे, शत्रुघ्न सिन्हा हमारे साइंस कॉलेज के बाहर बैठे रहते थे, तो हम लोग बोलते थे सिगरेट को ऐसे मार पीते थे, ऐसा करते थे, और वो लोहे की चेयर पे बैठे रहते थे। बोले तुम विश्वास नहीं करोगे, बम्बई जाके दिखाएंगे तुमको, बम्बई जाके दिखाएंगे। तो वो सब हम लोगों का टाइम देखा हुआ है। हमारे जो मेरी ये बात है कि जो बड़े कॉरपोरेट हैं दुनिया में, वो कॉरपोरेट 4 चीज़ों में ज़रूर भागीदारी लेते हैं। वो तभी वो अमेरिका, स्पेशली अमेरिकन, वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, फिल्म मेकिंग एंड स्पोर्ट्स, ये चारों में रहते हैं। तो जो इंटरटेनमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए। तो वो भी हम लोग कोशिश करते हैं। मेरे को समझ में नहीं आता है, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ये इंटरटेनमेंट में भी हम लोग लगेंगे, जिससे कि अच्छी फिल्में बने, आगे बढ़ें। उसमें भी कॉर्पोरेट का एक रिवाज है ये, उसमें भी देखेंगे क्या होता है। Good to know that. Manoj, last question before we continue with the program. अगर आपको किसी भी एक हिस्टोरिकल फिगर को प्ले करने का मौका मिले for one day या किसी फिल्म में, तो कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपके मन में है कि मैं ये पात्र मैं निभाना चाहूँगा? चाणक्य। ओहो जी, चाणक्य, क्योंकि मौर्य काल का इतना बड़ा हिस्टोरिकल फिगर, और हम लोग बहुत बड़े तौर पे हम लोग अभी भी जो है हिम्मत नहीं जुटा पाए या सोच नहीं पाए, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे लगता है कि इतना ज्ञानी आदमी, इतना आगे तक देखने वाला आदमी, और इन सब के साथ साथ बहुत ही यौगिक आदमी, विद्वान, और उस पे एक अलग बात कि उनको युद्ध की कला भी पता थी। वो आगे अपने दुश्मन की सारी चाल को भांप लेते थे, और फिलोसोफर आदमी थे। सो इस तरह के इतना मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी को जो हमारे इस धरती पे पैदा हुआ था, और बहुत ही गोल्डन एरा में पैदा हुए थे, बिकॉज मौर्य काल इज़ कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज। सो कभी उस पर काम नहीं हो पाया। यस, डेफिनेटली चाणक्य सीरीज़ बनी है उस पर, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की, लेकिन फिल्म पे उस तरह से बड़ा काम नहीं हुआ। Wonderful, wonderful, wonderful. Thank you so much to both of you. And as we draw to a close on this momentous occasion, I feel grateful for the collective dedication and commitment displayed here today. The launch of this movement is a promise towards the betterment of our nation's future. It is through endeavors such as these, taken ahead by the support of visionaries like Mr. Agarwal, that we have taken the path towards a brighter future for every child. May I now request Priya to please come and hand over a token of appreciation from the women entrepreneurs of Nandghar to Mr. Manoj Bajpai, please. This has been made by the women entrepreneurs of Nandghar. Hello. And may we request one moment to Priya for Tiska too, for hosting this and joining our movement. ये हम लोग की क्रैश रही हुई है। हम लोग टिस्का नहीं बोलते थे, टीस बोलते थे।
Thank you so much. Let us please carry forward the spirit of collaboration that is the backbone of this movement, ensuring that every child not only receives the care they deserve, but also the opportunities they need to thrive. Thank you once again. And जैसे कि प्रथा है, Agarwal family की, Vedanta family की, please join. On your left is high tea. Please join us for high tea. कामयाब एक दिन मन में है विश्वास हम होंगे कामयाब। 5 minutes, please go. हाँ हाँ, yes. जब आज भी आपको खूब भूख लगती है तो फेवरेट डिश क्या होती है आपकी एंड आप उस पर देखिए वो भूख लगने के बाद कोई पसंद का खाना मिले ये ज़रूरी नहीं है। भूख बहुत ज़ोर से लगती है तो कुछ भी मिल जाए खा लेता है आदमी, लेकिन अमूमन मुझे जो है भात दाल और आलू परवल की भुजिया बहुत अच्छा लगता है, जो बचपन में माँ खिलाती थी। वो आज भी मेरा फेवरेट डिश है। आपका क्या है सर? वही है, हम लोगों को अगर खाना में मार के साथ में चावल हाँ, उसके साथ में अरहर का दाल और उसमें घी चाहिए। वाह क्या घी डाला हुआ और आलू का या तो चोखा मिले या आलू का भुजिया मिले, बस बिहारी इतना हो गया तो बहुत हो गया। सर अगर बात की जाए, आपने छठ का जिक्र किया है जी, तो ठेकुआ और पूड़ी और कचौड़ी को कितना मिस करें? ठेकुआ, हाँ ठेकुआ तो क्या है, बहुत पवित्र चीज़ है। ठेकुआ तो क्या है, जैसे हम लोग कभी लंदन भी लेके जाते हैं ठेकुआ को तो कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि ठेकुआ हम लोग का एक कॉन्शियसनेस बहुत है ठेकुआ के लिए। और ठेकुआ तो ऐसी चीज़ है कि जो एक बार आप ठेकुआ खा लें हम लोगों को घर का, तो कोई उसके सामने मिठाई टिक नहीं सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? ठेकुआ खास करके छठ का जो पर्व होता है बिहार में, उस समय ठेकुआ बनाया जाता था। और हम लोग जब बच्चे थे तो हम लोग वेट करते थे कि कब वो समय आएगा कि घर में ठेकुआ बनेगा। तो एक जैसे कहें ना, हम लोगों का बिहार क्या है कि एक एग्रीकल्चरल स्टेट है जहाँ पर ज़्यादातर गांव हैं और वहाँ की अपनी परंपराएं हैं, वहाँ की अपनी प्रथा है, वहाँ के अपने खाने हैं और खानों की भी परंपरा है, तो जो कि हमारे परवरिश के साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज सर, जब आपकी मूवी आती, चाहे जोरम की मैं बात करूँ या साइलेंस 2 की बात करूँ, अभी आ रही है भैया जी, आप जो किरदार निभाते हो हमेशा ऐसे लगता है वो किरदार निभा रहे नहीं हो, उसको जी रहे हो आप, कैसे कर लेते हो? नहीं, कैसे करने के लिए उसके अपने तरीके हैं, पूरी तरीके से उस पर समर्पित होना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कलाकार दिख जाए तो फिर ये काम किया क्यों, क्योंकि अगर पूरी तरीके से किरदार दिखे, जहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे के लिए दर्शक ये भूल जाए कि वो मनोज बाजपेयी को देख रहा है, या मैं भूल जाऊं जब मैं देखूं कि ये मैं ही हूं, तब वो सबसे बड़ी सफलता होती है एक एक्टर की। भैया जी आ रही है और भैया जी अनिल जी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। मेन स्ट्रीम फिल्म है, एक्शन रिवेंज ड्रामा है और हमारी धरती की फिल्म है, हमारे बिहार यूपी के कल्चर से जुड़ी हुई फिल्म है। 24 मई को आ रही है, आप सब लोग देखिएगा, तब उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बधाई इंतजार कर रही है, साथ में फैमिली मैन 3 जी लोग इंतजार काफी जी, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ फैमिली मैन 3 का। बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर आएगी। Sir, you spoke about entertainment being a interesting business for the group right now. So what is it like? What stage is it at right now, or how long before we actually see some movement, if not from a profit-making perspective, beyond that as well? हम जानते भी नहीं है एंटरटेनमेंट की कोई में क्या किया जाता है। हमारा जो काम है वही एंटरटेनमेंट है। हमारे काम हम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा है। हमारी लड़की ने हम लोग स्टेडियम भी बना रहे हैं, हम लोग फुटबॉल की भी हमारी टीम है। हमारे जो जितने भी काम करते हैं, हमारे यहाँ 1 लाख लोग काम करते हैं, 10 लाख लोग जुड़े हुए हैं, सब स्पोर्ट्स में लगे हुए हैं। हेल्थ में भी हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे 3-4 बड़े हॉस्पिटल चलते हैं। हमने कभी इंटरटेनमेंट में देखने के अलावा कुछ किया नहीं है, लेकिन ये मैंने देखा है कि ये ट्रेंड है अमेरिका में भी, कि जहाँ पे कॉरपोरेट और इंटरटेनमेंट ये साथ में चलते हैं। कुछ न कुछ वो हिस्सा उसमें हिस्सा, ये नहीं कि वो खुद फिल्म बनाते हैं, कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं। उनको सहयोग की बहुत ज़रूरत है ऊपर उठाने के लिए,
वो हिंदुस्तान में कम है। वो बहुत ज़रूरी है कि कॉरपोरेट आगे बढ़ के वो प्रॉफिट के माध्यम से नहीं देखें, कल्चरल के माध्यम से देखें, ड्रामा, थिएटर, मूवी, इनको आगे बढ़ाएं, हाँ, क्योंकि वो उसमें प्रॉफिट्स देखने से काम नहीं हो सकता है। मनोज सर, जैसे कि इसका जो थीम है वो आपने खाना खाया क्या ये है, लेकिन अभी अगर हम बांद्रा ये सब जगह देखें तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे जो घूमते रहते हैं, तो आपको लगता है कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, मतलब जो बड़ी पहचान जो फेम वाले हैं, उनको ये सब खुद पर्सनली इनिशिएटिव लेना चाहिए? बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, चाहे मैं जिनको नहीं भी जानता हूँ, आपको नहीं पता, ये सारी बातें वो लोग करते नहीं हैं, लेकिन सबके सब किसी न किसी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, किसी न किसी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। आजकल के कलाकारों में अच्छी बात है कि वो समाज में वो अपना योगदान देना चाहते हैं और प्रकृति से जो लिया है उसको वापस भी करना चाहते हैं। तो मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता हूं कि जो लगातार इस तरह की चीज़ों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। थैंक यू सर, जाने से पहले आखिरी सवाल, जिस तरह से आपने बताया कि आप बिहार में भी शुरुआत करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रीज के सेटअप के साथ, तो सर ऐसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा जो आप मुंबई से जो है बिहार ले जाएं, ताकि जो वहाँ के लोग हैं जो यहाँ आकर जॉब कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना? हम तो कैटलिस्ट बनेंगे, एक बार चालू करेंगे तो लोग आते जाएंगे, क्योंकि बिहार में पहले भी इंडस्ट्री कल्चर था। हमारी स्टील इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइज़र कंपनी, ऑयल कंपनी वहाँ थी। तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम तो सूरज भगवान की सिर्फ पूजा करते हैं, तो रिन्यूएबल में हमारा बहुत इच्छा है कि रिन्यूएबल एनर्जी हम बिहार में करें, एल्युमिनियम इंडस्ट्री भी करें, कॉपर इंडस्ट्री भी करें, लेकिन फिजिबिलिटी नहीं बन पा रही है, क्योंकि सबको स्टेबल सरकार चाहिए, ठोस सरकार चाहिए। वो आने वाली है, ये सब टाइम का सवाल है। जैसे आएगा, मैं वादा करता हूँ कि मेरा ध्यान पूरा उस तरफ लगा हुआ है, लेकिन जब तक कि बैंक और शेयर होल्डर मेरे को साथ नहीं देंगे, उनको मैं कागज़ पर नहीं दिखाऊं कि ये सही जगह है, सही स्टेबल है, तो वो उसका मैं इंतज़ार कर रहा हूं। लेकिन रिन्यूएबल का काम हम जल्दी चालू करेंगे। सर, उसके बाद सबसे पहला इंटरव्यू हमारे साथ से। जी, जरूर।